अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने एचटीएमएल पहले कभी सुना भी नहीं है या फेमिलियर नहीं है एचटीएमएल से? ऑनेस्टली बताओ। अच्छा, मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मतलब सब्सटेंशियल बैच के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एचटीएमएल से फेमिलियरिटी नहीं है। ठीक, इसलिए पूछा था क्योंकि उसी हिसाब से उसकी लेवल से लेके चलेंगे। और अच्छा, वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हैं वो आप लोगों ने देखा है? ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा, मतलब लेक्चर वीडियोस अपलोड भी होते रहेंगे साथ साथ। बट डोंट रिलाई ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, लेक्चर्स करप्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और क्लास करना ज़रूरी तो है ही है, खैर, है ना? लेकिन एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू फॉल बैक, अगर कभी आप क्लास मिस हो जा रही है या किसी वजह से आप रिवाइज करना चाह रहे हैं कंसेप्ट को, तो आपके पास रहेगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्लास में कहाँ खत्म किया था हमने, कुछ रिमाइंड कराएगा? और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बताई थी मैंने, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बताई थी। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा, मैंने कवर किया था, बट स्टिल अगर आप कह रहे हैं तो एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट तो नहीं है, मतलब कोई फॉरेन स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं है ना? आज नहीं है ना? ठीक। तो क्या होता है कि सी, एक बड़े पिक्चर के अंदर मैं दो छोटे बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है? और ये जो क्लाउड टाइप का बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इट्स वन कंप्यूटर, ठीक है? एंड इट कुड बी अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स और अ सिंगल कंप्यूटर ऑल्सो, एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो इस, राइट, so internet could be seen as a very large network, ठीक है, which is public. This machine is a hardware machine that I call as server machine, ठीक है, and this server machine also contains, or there is something installed on it, which is a software, and the software is also called as server software, ठीक है? So when I say server, I mean server hardware plus server software. In real implementations, what happens, it could be just a single machine for a very simple application. Otherwise, for a very large scale application, for example, if I talk about Amazon, okay, it's a very huge e-commerce web portal, right? So in that case, it will have a number of servers. They are connected together, and that's what we call as a cluster of servers, okay? We call them as cluster of servers. And not only that, these cluster of servers could further be distributed across the globe, ठीक है? So there could be cluster of servers or individual server, and there could also be possibility of distribution, ठीक है? Why? Because for example, you are requesting for say a page at amazon.co.in, so that should show you all the results from India, right? If you are looking for amazon.com, it should show you from US, for example, right? So that means, depending upon your location, the nearest location should be fetched, or the most relevant location should be fetched.
ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लाइंट क्या होता है. व्हाट इज द क्लाइंट? इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स not the client hardware machine, but it's the browser. It's the browser which is a client, right? It's the browser which is a client. So a Firefox in the same computer is a different client, and a Chrome in the same computer is also a different client. They will behave as a different client. So we call it as client software. ठीक है, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे. तो ये बताया था कि क्लाइंट को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं. There are different parameters. It could be different person who is trying to log in the same site. It could be same person trying to log in the same site at different moment of time. For example, if you are trying to access Gmail at this time and then after 1 hour, then the whatever the response that you get in the inbox that changes, right? Right? It could also be based upon the location that matters. ठीक है, तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है. बट एसेंशियल द वेब पेजेस दैट यू क्रिएट, whether they are static web pages or they are dynamic web pages. We have discussed static and dynamic web pages, right? So whether they are static dynamic web pages or dynamic web pages, they are lying on this hardware set of hardwares, and within that, I will prefer to call them, they are placed inside the server software, some of the folders of the server software. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपका एप्लीकेशन बैठा हुआ है यहाँ पर, राइट. फाइन. You send a request for a particular resource. Let me say the resource is http://gmail.com. ठीक है, ऐसे कहेंगे है. ये एक रिसोर्स है, दिस इज अ रिसोर्स. ठीक है, and this resource means I am requesting for a HTML page. ठीक है, otherwise a PDF file could also be a resource, an audio video file could be a resource, and so on. So when this particular resource is requested across the internet, the control goes somehow, right, and it reaches to this server. The server receives the request, and this request is called as HTTP, hypertext transfer protocol request. Not just request, but hypertext transfer protocol request, because the underlying protocol which is being used is hypertext transfer protocol, HTTP, right? ठीक है, so that means now the communication will be governed by all the set of practices that HTTP dictates. ठीक है, similarly, maybe this particular, when you say gmail.com, you are expecting a login page, and because you have not given the name of the explicitly given the name of the resource, so by default I have told you that it could be converted to index.html, right? ठीक है, also there are many ifs and buts in that, but as of now we are assuming if you are not giving the name of the resource, the HTML page, then it is by default is being converted to html dot index.html, right? And inside this server machine software में एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर index.html पेज, index.html पेज ऑलरेडी कोड करके पड़ा होगा. और उस कोड में क्या होगा, उस कोड में कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म होगा जिसमें पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, ईमेल के लिए बॉक्स होगा, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड के लिए बॉक्स होगा, सबमिट बटन होगा, कैंसिल बटन होगा, जैसा कि आप देखते हैं, राइट. ठीक है, दैट पर्टिकुलर पेज इज read in the form of text embedded inside a packet. ठीक है, inside the body of a packet, and that body of a packet is sent back to the client. Now that body of packet which is being sent as a response to the client is called as HTTP response. ठीक है, बेटा गेट बंद कर दो. तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल बोलते हैं. ठीक है, मगर ध्यान रखें चूंकि वी हैव जस्ट ओनली वन प्रोटोकॉल, HTTP protocol for internet communication, so we are talking about HTTP request and HTTP response. ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि when you are going to build a real application, then whether it's a static application or dynamic web application, in both the cases
The content that you are developing, it will reside somewhere in a remote server and not on your local machine. But for testing purpose, you want both the things to be on your local machine so that you can test within the browser. So the client and the server both are being treated as inside the same hardware. ठीक है? ठीक है? Now these web pages, ठीक है? The most elementary technology to build these web pages is HTML, hypertext markup language. So it's a language made up of tags. ठीक है? The different tags. We will see what tags are. So the different tags, and it's one of the easiest language to learn. And these tags, when they come inside the response body to the browser reads the text and interprets and translates it and presents you with the result on the screen. ठीक है? So there is no compilation. It's a direct interpretation. Interpretation happens at the runtime. ठीक है? भाई यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ना भाई? तो अच्छा, when I say HTML is the most elementary technology, इसका मतलब there are other technologies also. There are lots of frameworks actually, which provides a lot of extensions using their tags. But ultimately, when they come as a part of the response, it is all just HTML, plain HTML, and nothing more than that. ठीक है? So that is why understanding HTML is important. ठीक है? तो ये एक छोटी सिनेरियो होगी समझने के लिए कैसे कम्युनिकेशन होता है रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच। यानी आप क्लाइंट मशीन लेके बैठे हैं, आप ब्राउजर लेके बैठे हैं, आपने एक वेब पेज को रिक्वेस्ट किया, दैट्स अ रिसोर्स, और दैट रिसोर्स इज सिटिंग समवेयर अक्रॉस द ग्लोब, some at some server, maybe in Germany or US or somewhere, right? And then that response is being embedded inside a packet which is called as HTTP response, and that response is sent back to you. ठीक है? And as I remember, I told you two features of basically HTTP protocol. Two important things to understand about HTTP protocol. One was it's a text-based protocol. ठीक है? Second is it's stateless protocol. ठीक है? टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट से और सर्वर के बीच, ये किस में हो रहा है? कंप्लीटली टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो रहा है, राइट? अगर आपने फॉर्म में अपने एज भर रखी है, ठीक है, वो जो एज जो जाएगी सर्वर के पास, आपने भरी 29, राइट? तो 29 एज अ टेक्स्ट जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि एज के अगेंस्ट की इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए एडमिशन के लिए, तो उस 29 टेक्स्ट को 29 न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर्वर पे आपको, तब जा करके आप उसको न्यूमरिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं। So just keep in mind whatever the communication is happening in HTTP protocol is in text because it's a text-based protocol. And the second thing is it's a status protocol. That means once a communication cycle is over, a request is asked for and a response is served, then the server forgets the client. ठीक है? Server doesn't maintain the state of the client. ठीक है? Next request means it's a completely new cycle going to be started. ठीक है? Somehow the server has to be reminded of that who the client was. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं वापस HTML पे। ठीक है? आपको पहले ही बताया था तीन चीज इसमें है बेसिकली कोडिंग का जो हमें सीखना है। एक तो HTML सीखना है, दूसरा CSS सीखना है, तीसरा जावास्क्रिप्ट सीखना है। ठीक है? तो बारी बारी हम सीखेंगे। बहुत सिंपल सा सिलेबस है आपका, है बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है? देयर इज लॉट दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन। कई जगह मैं आपको एक तरह से पॉइंटर्स देके छोड़ दूंगा, आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है? तो
सबसे पहले जो HTML पेज एक हमने बना के देखा था, देखिए वर्डपैड या नोटपैड में आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे अज्यूम करिए कि आपने नोटपैड ओपन किया और ये कोड टाइप किया। नाउ दिस इज द फर्स्ट HTML कोड, ठीक है। इसका एक बार रिजल्ट देख ले। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये किसमें खुला? ब्राउजर में खुला। जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें खुलेगा। अदरवाइज ओपन विद करके आप किसी और ब्राउजर में चाहे किसी और ब्राउजर में खोल सकते हैं, राइट। इसमें आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है? कुछ लिख कर क्या रहा है? वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, देयर आर सर्टेन बुलेट पॉइंट्स, item 1, item 2, item 3 and so on. There is an example image which is not available, ठीक है। And then there is a link, right? If you click on the link may take you somewhere, depending upon whether internet is working or not. देखिए मैंने लिंक दे रखा है jamiahmdad.ac.in का, ठीक है। तो सीधे jamiahmdad.ac.in पे लेके आया, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए इसने पेज को रेंडर नहीं किया है अभी तक, ठीक है। फाइन। अब लेट्स गो टू द कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड। सबसे पहली लाइन क्या है? टैग। इट्स अ टैग लैंग्वेज, राइट, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो आप जो कुछ देखेंगे ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर देखेंगे, तो दैट्स अ टैग, ठीक है। तो पहला टैग सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे आपको नजर आएगा, दैट इज डॉक टाइप। दैट मींस यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज, ठीक है। And when you say the doc type is HTML, then essentially you are telling that it's not just HTML, but it's HTML5 document, which is the latest version of HTML. Otherwise, earlier HTML versions would have, if you see, they will have a longer, textual information about the what kind of document they are. ठीक है। तो अगर सिर्फ आप HTML देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाए कि दिस इज द इजीएस्ट और द सिंपलेस्ट थिंग टू सी, एंड दैट मीन्स इट्स अ HTML5 document. The browser is going to treat it as HTML5 document, ठीक है। Then the next tab is HTML itself. This tag it starts from HTML and ends in HTML. जो आप फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? जो भी टैग जो शुरू हो रहा है नॉर्मली उस टैग को आप फॉरवर्ड स्लैश से खत्म होते देखेंगे, ठीक है। सो वॉट एवर इज बिटवीन दीज टू टैग्स, ठीक है, आई विल सेंड यू दिस फाइल, डोंट वरी, ठीक है। सो वॉट एवर इज बिटवीन दीज टू टैग्स, दैट इज कंसिडर्ड इन द स्कोप ऑफ द HTML टैग, ठीक है। यानी ये सारी चीजें HTML है, ये सारी चीजें क्या है? HTML है। अब HTML दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट देखिए, हेड दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक हेड, ठीक है। और एक पार्ट है आपका बॉडी पार्ट। तो देयर इज अ हेड पार्ट एंड देयर इज अ बॉडी पार्ट, ठीक है। हेड में मेटा इंफॉर्मेशन होती है, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेज? इट सेज इट्स माय सिंपल HTML पेज, ठीक है। So it will give you the meta information. There are many other possible meta information also, we will see later, ठीक है। But basically head is meant to give you the meta information about the page, ठीक है। And the body contains everything which is supposed to be rendered or the effect of which should be displayed, ठीक है। अब बॉडी में क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले देख रहे हैं एक बॉडी यहाँ से शुरू हुआ और बॉडी यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। ये टैग H1 है। There are 6 headings: H1, H2, H3, H4 and H5 and H6. H1 is the largest size heading, H6 is the smallest size heading, ठीक है। तो H1 शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? इसी लाइन के एंड में, ठीक है। तो यानी जो कुछ इसके अंदर लिखा है दैट विल बी रिटन इन अ वेरी बोल्ड फेस्ड,
लेट मी से इफ आई वांट टू राइट समथिंग इन H6 ताकि आप डिफरेंस देखें, तो आई विल स्टार्ट विथ H6 टैग और इस टैग के अंदर smallest heading for example, right? And then I have to close it also, right? ठीक है, सेव कर देते हैं। ये नया टेक्स्ट मैंने ऐड किया है, वेलकम टू सॉरी स्मॉलेस्ट हेडिंग, ये नया टेक्स्ट ऐड किया है। सेव करने के बाद सिंपली जाकर के आप इस पेज को दोबारा से ओपन कर लें। देखिए स्मॉलेस्ट हेडिंग लिख करके आ गई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है। एक आप नया HTML पेज आपको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल with an extension of not .txt but HTML। ठीक है, से मैंने इसको कहा a.html, राइट। लेट मी ओपन विथ से वर्डपैड से आसान होता है थोड़ा सा देखना। मैंने सिंपली इसको कहा H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, H1 से शुरू हो रहा है तो H1 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट्स अ मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट इट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ना तो मैंने इसमें HTML लिखा, ना तो इसमें बॉडी लिखी, ना डॉक टाइप लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सही लिखा, मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि जब आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज करेंगे और एक्चुअल कोडिंग करेंगे तब आपको स्ट्रक्चर से बाइंड करना, कई बार स्ट्रक्चर से अवॉइड करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी इंटेलिजेंट ब्राउजर which can interpret it without the head and the body. It could understand that it's a part of the body. ठीक है, हेडर टैग है तो बॉडी का ही पार्ट है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने H1 में नहीं लिखा होता तब भी उसने उसको एज अ पैराग्राफ प्रिंट कर दिया होता, सिंपल टेक्स्ट में प्रिंट कर दिया होता। ठीक है, तो एसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल गिविंग द एक्सटेंशन .html, right? And then I am writing something in the form of tags, and the browser reads those tags, translate to something, and then present the translated information on the screen. कहीं कंपाइलेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो रहा है या ट्रांसलेशन हो रहा है, राइट। Now see within the body what we have in this page, H1 and H6, you are aware of it now. P stands for paragraph, that means simple text. If you want to write simple text with a lengthy content, then you can just use the paragraph tag, right? So it starts with P, it can get into multiple lines also। ठीक है, आप इसे बहुत कुछ और भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, राइट। Just you have to press Ctrl S, that means save, and if the page is already open, this was the page, you have to say refresh and things will change। ठीक है, आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है, फाइन, रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको एक बार। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए URL देखिए क्या है इसका, ये जो पेज ओपन हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है, राइट। सी ड्राइव में ऑफिस नाम का क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम करके ऐसा कुछ फोल्डर होगा, आप देखो इसी फोल्डर के अंदर मैंने रख रखा है, राइट। तो सिंपली जो ब्राउजर आपका जो URL दे रहा है वो क्या दे रहा है, URL फाइल सिस्टम को दे रहा है। अदरवाइज जो मैंने आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल से अभी जो डायग्राम बना के बताया था उसके हिसाब से अगर आप चले तो एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे HTTP :/ फिर एक IP एड्रेस या उसका डोमेन नेम होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका रिसोर्स का कंप्लीट नाम, पोर्ट
number and all those information should be there, right? ठीक है, कायदे से ऐसा होना चाहिए, है ना? अभी सिंपली हमने फाइल बनाया, एचटीएमएल फाइल बनाया, अपने लोकल ड्राइव में इसको रखा और डायरेक्टली ब्राउजर में उस जगह से ओपन कर दे रहे हैं, तो ब्राउजर भी उसी लोकेशन का आपको पाथ दिखा रहा है, ठीक है? देन यू सी यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जहाँ नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, when you have bullets and all those things, that's an unordered list, ठीक है? And then this unordered list starts here and it ends here, ठीक है? क्लियर है? एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट आइटम्स होंगे, so you can see list items are mentioned with the tag li, ठीक है? पीछे वालों को विजिबल है ना भाई? बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है, इसको सुनते रहना है, समझना है, घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। तो लिस्ट आइटम टैग के अंदर आप आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 आपने डाल दिया, एंड दैट इज व्हाट यू सी ऑन द रिजल्ट पेज, ठीक है? आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड सो ऑन। देन you see img, this tag is for adding image, there has to be a source of the image, ठीक है? If I am not giving the complete path of the image under double quotation, I've just given image.jpg, that means the image is lying inside the same folder where this HTML page is lying, ठीक है? Can you see any image over here in this folder? No, ठीक है? अगर इमेज यहाँ पे नहीं है तब क्या है? ALT, alternate solution, ठीक है? If the image is missing somehow in the specified location, then take the alternative that you, instead of showing the image, print this example image, right? अभी क्या हो रहा है, आपको यही दिख रहा है ना, एग्जाम्पल इमेज दिख रही है, राइट? अगर हम यहाँ पे कुछ इमेज डाल दें, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ब्रिंग सम इमेज फ्रॉम समवेयर, से लेट्स सी व्हाट इज दिस इमेज, ओके, देयर इज अ इमेज, ओके, इसको कॉपी करते हैं और लेट्स पुट इट हियर, ठीक है? और इसका नाम क्या चेंज करना पड़ेगा जी? जो आपने मेंशन कर रखा है यहाँ पर, इमेज डॉट जेपीजी, सेम चीज आपको ये पाथ देना पड़ेगा, ये नाम देना पड़ेगा उसको, ठीक है? यस, नाउ लेट्स सी, इस पेज पे जाके एक बार रिफ्रेश कर ले इसको, देखिए इमेज आ गई, और वो जो अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा था वो चला गया, राइट? ठीक है? देन व्हाट वी हैव ए टैग स्टैंड फॉर एंकर, ठीक है? दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ लिंक, hyperlink reference is equal to https www.jamiahamdard.ac.in, जो मैंने लिंक दे रखा है जहाँ पे आपको लेके जा रहा था एक्चुअली, वो क्लिक करने पर। सो दिस इज द लिंक which has to be traversed, or the URL which has to be traversed, right? But you will not see on the page this information, this URL. Rather, you will see the text appearing visit jamiahamdard homepage.com, right? And you will see it underlined, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो वो जाएगा कहाँ पर? इस लोकेशन पे जाएगा, ठीक है? सही है? एक बार देख लीजिए क्या लेकर के आ रहा था, सही है ना? फाइन। देन
योर बॉडी क्लोजेस एंड आफ्टर दैट योर HTML क्लोजेस। तो ये तो क्लियर है, सिंपल सा कोड था, HTML कोड था आपका, ठीक है। आपने आप ये एक मिनट में देख लो, अभी देख लो हमने क्या किया है। यहाँ पे आप देख लो स्पेसेस प्रिंट नहीं हो रही, राइट। एक्चुअली करना क्या है मुझे, अगर आप चाह रहे हो कि मतलब अगली लाइन में जैसे आ जाए, राइट, तो यहाँ पे सिंपली आप एक काम करो, एक पेज के बाद इधर आओ, ये लगा के देखो, लगा सकते हो, हो गया। ब्रेक रूलर, लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो शायद पिछली बार मैंने आपको बताया भी था, आई हैव ऑल्सो लिस्टेड हियर नंबर ऑफ वेबसाइट्स which are good for learning HTML, so you can go through them, ठीक है। And then I have also listed a few editors, what you see is what you get editor, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे पेड एडिटर्स भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा फैमिलियर यूज़ में है पेड में, ड्रीम वीवर है, राइट। ड्रीम वीवर अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी मिलता है, आप ट्राई आउट कर सकते हो, इट्स अ पेड वन, राइट। सो what you see is what you get means you can see everything on the screen, ठीक है। You have the option to make a HTML page by visually seeing, like for example if you want to insert a text box, you see the option to insert a text box and you will see a text box appearing, ठीक है। So these types of editors are called as, what you see is what you get editors, right. So there are so many, many are paid, many are free. So I have tried to download a few of them and try to experiment with them. One of them is NVU, and let me show you just for the sake of example, guys. See, this is one of the, what you see, what you get is what you get editor, right? अब इसमें देखिए ऐसा कुछ आपको स्क्रीन दिख रहा है, राइट। लेट मी शो यू हाउ टू वर्क विथ इट, ठीक है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एग्जैक्ट करिकुलम दैट वी आर रीडिंग, इट्स जस्ट आई एम गिविंग अ पॉइंटर सो दैट इफ यू वांट यू कैन further explore such kind of editors, and if you want you can work with it, ठीक है। Say for example I want to insert a form, right, HTML form, right। So I will say define form, ठीक है। देखो ऐसा कुछ दिखेगा स्क्रीन आपको, नॉर्मल आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब टेबल्स, टूल्स, ये सारे रहते हैं, राइट। आई वांट टू बिल्ड अ HTML फॉर्म, ठीक है। जैसे लॉगिन फॉर्म हुआ, यूजर नेम हुआ, पासवर्ड हुआ, सबमिट बटन हुआ, रीसेट बटन हुआ, इस तरह का फॉर्म मैं बनाना चाहता हूँ, राइट। So what I will say is I will just go and I will say define a form. So let me say the name of the form is login form, ठीक है। And that's it. देखा। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, दिस इज अ नॉर्मल व्यू, देयर इज ऑल्सो अ सोर्स व्यू। अगर आप सोर्स व्यू करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ठीक है। पूरा HTML फॉर्म जनरेट हुआ है, देयर इज अ HTML फॉर्म
and then there is a head. ठीक है, you can see there is a longer version of HTML doc type. ठीक है, and this is referring to HTML 4.0.1. ठीक है, this is not HTML 5 being generated. ठीक है, आपको बताया था ना, जब आप सिंपली HTML देखें तो आप देखते ही समझ जाए क्या है ये HTML 5 है. ठीक है, अदरवाइज यू विल सी a longer. DTD means document type definition. So there is a specific definition for every version of HTML. So you have to give a reference of the specific DTD to which this HTML document is complying. ठीक है, तो यहाँ 4.0.1 के लिए है, राइट. HTML शुरू हुआ, HTML खत्म हुआ, head शुरू हुआ, head खत्म हो गया, right. In head you have got certain meta information like the type of the content, it's text.html, character set, ISO, some standards are there. Then title is empty. If I want I can insert a title. Fine. Okay, then inside the body you will see a tag form, because I want to build HTML form. So form is there. There is a name of the form, login form, say for example, and then form ends, right? Uh, if I do something like this, say for example, and save it, or just leave it, we can just go to the source and see. You see, this form tag has been separated by a lot of break rulers, right? काफी space के बीच आ गया, right? Then here, for example, I want to insert form field. ठीक है. Uh, even before, let me type something. Say for example, uh, mail ID. Mail ID. ठीक है. And then I will insert form field, a text field. ठीक है. So a field which will be there in the form that will be recognized by your name. ठीक है, जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो वेरिएबल का आप नाम देते हैं int x is equal to 5 आपने पहली बार असाइन किया, then maybe further you might need to do some computation on x, so you will have to have used the same name x again and again. So every field should also be given a name, right? Say for example email. ठीक है, तो इस फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो क्या होगी, वो ईमेल नाम से, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम होगा वो ईमेल होगा. ठीक है, ओके. Let me say again, I am going to type something, say password, and let me insert form field. Instead of text I will choose password now. ठीक है, field name is PASSWD for example. ठीक है, right. Then let me say I want to insert form field, and this time I want to insert a submit button. ठीक है, field name is submit and field value is say login. ठीक है, तो नाम जो होता है वो नाम इंटरनल पर्पस के लिए होता है. ठीक है, लेकिन जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो वैल्यू सबमिट बटन के ऊपर नजर आएगी. ठीक है, देखिए लॉगिन यहाँ लिख कर क्या है ना, बटन का नाम क्या था, सबमिट था, वैल्यू क्या लिख कर के आ रही है, लॉगिन लिख कर के आ रही है. सिमिलरली लेट में से फॉर्म फील्ड, अब देखिए अलग अलग टाइप की फॉर्म फील्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ, कभी टेस्ट करा, कभी पासवर्ड करा, चेक बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, देयर सो मेनी, राइट. इवन फॉर अपलोडिंग अ फाइल यू कैन यूज फाइल. ठीक है, and then say for example I want to use say reset button. ठीक है, name is reset and value is cancel. अब फॉर्म देखिए आपको समझ में आ रहा होगा क्या करेगा ये फॉर्म. ईमेल आईडी पासवर्ड में एंटर कर सकता हूँ, और जब मैं लॉगिन करूंगा तो ये फॉर्म, अगर इसको मैं बताऊंगा कहाँ पे जा करके
इस इनपुट को पहुंचाना है तो उस जगह पहुंचा देगा, ठीक है। कैंसिल को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी है वो गायब हो जाएगी, दोबारा से मैं इंटर कर सकता हूँ, राइट, फाइन। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ, यू कैन सी, पता नहीं से प्रीव्यू काम, अच्छा, ओके, आई डोंट नो, एक बार सेव ही कर देते हैं इसको, सेव एज, इट्स ए टूल जनरेटेड एचटीएमएल पेज, ठीक है। इसको किसी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, आपको दिख रहा है, राइट। मेल आईडी मैंने इंसर्ट किया, से फॉर एग्जांपल shaimrana@gmail.com, पासवर्ड इंटर किया, लेकिन जब मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ तो वो पासवर्ड के फॉर्म में दे रहा है, क्योंकि फील्ड टाइप क्या हुई है, चेंज हो गई है। पहली फील्ड टाइप क्या थी, टेक्स्ट थी, तो उसने टेक्स्ट लिया, ठीक है। दूसरी फील्ड क्या है, पासवर्ड है, तो इससे पासवर्ड है, तो पासवर्ड में उसने क्या करा, शोल्डर प्रॉब्लम जो होती है उसको अवॉइड किया इसने, मतलब डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आपको। लॉग इन करूंगा तो देयर शुड something should happen, but as of now it will not happen because I have not given a action URL. There is something called as action URL, कि जब फॉर्म को सबमिट करें तो उसका एक्शन क्या हो, ठीक है, यानी किस URL पे जाकर के वो सबमिट हो सर्वर पर, तो वो मैंने अभी नहीं दिया है इसका, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं होगा, मैं अगर लॉगिन प्रेस करता जाऊंगा, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, बस खाली वो ब्लैंक हो गया। और आप देख रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या दिख रही है, चूंकि ये लोकल आपके फोल्डर के अंदर है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर का आपको यूआरएल दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या दिख रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ये कुछ इस तरह लिख करके दिख रहा है आपको, राइट। कैंसिल प्रेस किया तो रिमूव हो गया, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल टूल which is called as what you see is what you get tool, ठीक है, to design a page, ठीक है। So there are lots of designers, as I said Dreamweaver is one of the very famous designer tool. तो जब हमारे पास डिजाइनर टूल है तो फिर जरूरत क्या है एचटीएमएल पढ़ने की, है ना। तो ये ध्यान रखिए यहाँ सिर्फ एचटीएमएल का मसला नहीं है, एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, एट द मिनिमम हियर। फिर इसके बाद भी आप जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो यू विल यूज लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, ठीक है, टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, वो अपने आप जनरेट करेंगे एचटीएमएल को, ठीक है। फिर जो टूल से जब भी कोई चीज़ आप जनरेट करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्जिन है, कुछ और दूसरी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो जनरेट हो रही है वो आपके फुली कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि हर टूल की एक लिमिटेशन होती है। So when you are able to understand the actual code behind it, then only you can be in a position to fix or get the thorough control of whatever you have done, ठीक है। इसलिए बेसिक एबीसीडी के फॉर्म में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, अदरवाइज it's very much possible that you can just go for a very high level technology and start working with that, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, ओके। इसका मेरे पास इंस्टॉलर मौजूद है, मैं इसको कहीं अपलोड कर दूंगा ताकि आप चाहे तो ट्राई कर लें, ठीक है, मैं अपलोड करके लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर। सिमिलरली देयर आर अदर एडिटर्स आल्सो, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज आईडीईज, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो वन ऑफ द आईडीज इज विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, although I am not very much familiar with Visual Studio, क्योंकि मैं हमेशा जो काम करता हूँ मैं जावा पे काम करता हूँ, तो Eclipse वगैरह यूज किया है मैंने, ठीक है। बट बिफोर बिकॉज इट्स मच सिंपलर टू यूज और मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी इसमें आपका सपोर्ट मिलता है, तो मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करा है, एंड वी विल ट्राई टू वर्क विथ इट ऑल्सो, ठीक है।
तो इसका इंस्टॉलर मेरे पास है, ये भी मैं डाल दूंगा आपको, दोनों को किसी एक गूगल ड्राइव की लोकेशन में डाल के आपको शेयर कर दूंगा, और दोनों आप इंस्टॉल करके उसको उसके साथ यू कैन प्ले विद, ठीक है। And further, instead of typing everything on a text file which will be much slower, we will be using this Visual Studio, ठीक है। ये जो टूल मैंने आपको दिखाया है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट काइंड ऑफ टूल, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो आपके आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाती हैं, ठीक है। बट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। सो लेट मी ओपन द विजुअल स्टूडियो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपको इंस्टॉलर दूंगा, आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये विंडोज का इंस्टॉलर है, मैक का चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेना, सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये विजुअल स्टूडियो एडिटर खुल के आपके पास आ रहा है, राइट। अब ये इस तरह की जो एडिटर है, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा जहां पे आप फॉर्म के एलिमेंट आप इंसर्ट कर पाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बट इट विल ऑटोमेटिकली डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर यू, लाइक ऑटो कंप्लीशन, ठीक है, गिविंग यू हिंट्स। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एच से प्रेस किया, अब देखिए एच से मुझे क्या क्या ऑप्शन दिखने लगे, H1 H2 H3 पूरे H6 तो दिख रहे हैं, उसके अलावा हेड दिख रहा है, HTML दिख रहा है, जितने भी पॉसिबल एच से स्टार्ट होने वाले टैग्स हैं वो सारे मुझे हेल्प की तरफ शो होने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा H1 शुरू भी हुआ, H1 कंप्लीट भी हो गया, ठीक है, फाइन। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगेन आई हैव नॉट written any HTML, I have not written head and body inside it, but because my browsers are very very clever, so I expect if I save it and I will try to run it, I will be in a position to see the result, ठीक है। Control S, or let me say file save as, sorry, let me say test.html, ठीक है। Okay, let's go to that folder, फाइन, ठीक है। Let me just remove it back and let me say HTML, ठीक है, HTML5, ये पूरा कोड जनरेट हो गया क्या आपके पास, ठीक है। सच एन इजी वे, राइट। HTML5 कहा तो सिर्फ इसने डॉट HTML ही जनरेट किया। फिर उसके बाद आप हेड के अंदर देख रहे हैं काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख करके आ रही है। I've told you that head is used to write the meta information, and what we mean by meta information is it's the information about the page, the HTML page itself, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो व्यू पोर्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। व्यू पोर्ट क्या कह रहा है, width is equal to device width। डिवाइस width का मतलब आपका डिवाइस अलग अलग हो सकता है, राइट। अभी आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं जिसकी साइज स्क्रीन साइज कुछ और होगी, हो सकता है बड़े कंप्यूटर पे देखे, हो सकता है फोन पे देखे, लैपटॉप पे देखे, तो ऑटोमेटिकली HTML5 क्या करेगा इसमें, ये जो टैग है जो मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि जब उस डिवाइस में ब्राउजर जब रन करेगा, तो ब्राउजर रन करते वक्त इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, और ये इन्फॉर्मेशन चूंकि इस फॉर्म के बारे में है, तो जो भी कंटेंट इसको इस फॉर्म के अंदर का डिस्प्ले करना है, उसको डिस्प्ले करने से पहले ये समझ जाएगा कि व्यू पोर्ट है, यानी जितना आपको दिखना चाहिए एरिया, वो किस साइज की होनी चाहिए, वो डिवाइस की वेट्स की होनी चाहिए, दैट्स इट, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, ठीक है। पहले आपने देखा होगा, पहले जो लोग कोडिंग करते थे अक्सर देखते थे, कभी कभी एक ब्राउजर पे चला रहे हैं तो कोई इधर भाग रहा है, दूसरे ब्राउजर पे चला रहे हैं तो कंटेंट इधर भाग रहा है, राइट, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग अ बेनिफिट कि आपको यहाँ पे इस सब चीज की वरी
करने की जरूरत नहीं है, राइट, जस्ट बाय यूजिंग वन ऑफ द मेटा इंफॉर्मेशन टैग। ठीक है, then the document is a document, it's just a document, fine. Now within the body, if you want to make a complete form just like we have did earlier, so you can make a form, you can insert a form tag, right? ठीक है, अभी देखो फॉर्म टैग आ रहा है, तो पहले भी हमने फॉर्म टैग विजुअल व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट काइंड ऑफ टूल से बनाया था, राइट? उसमें क्या हुआ था, आपको दिखाता है कोड जो बन गया, उसमें फॉर्म एक टैग लिख करके आया था, फॉर्म क्लोज हुआ था, उसके अंदर हमने सब कुछ इंसर्ट करा था, राइट? फाइन, लेट्स गो टू दैट कोड इटसेल्फ, वही कोड जाकर के देखते हैं हमने क्या बनाया था। क्या नाम था उसका? टी बनाया नहीं, टूल जनरेटर, राइट? Okay, let me open it with a say a wordpad, right? सी फॉर्म नेम ऐसी था ना, फॉर्म नेम, फॉर्म का एक नाम होता है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर इनपुट टाइप इनपुट किया, नेम इज इक्वल टू ईमेल, उसका नाम दिया, राइट? तो यह बॉक्स बन के आ गया। इनपुट इफ नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, तो पासवर्ड बन के आया था। तो वहां भी कोड जनरेट हुआ था बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं कि कोड जनरेट नहीं हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ कोड जनरेट हुआ था। लेट्स से मैं अगर यही कोड उठा करके मैं ले जाऊं उधर, विजुअल स्टूडियो, या ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। नाउ लेट्स सी टेस्ट डॉट एचटीएमएल में कुछ चेंजेस आए क्या? टेस्ट डॉट एचटीएमएल वही हमने जो विजुअल स्टूडियो बनाया है, बनकर क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड समथिंग, फॉर्म एक्शन हम ऐड करते हैं। फॉर्म एक्शन से http कॉलम बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ये ऐड कर दिया, ठीक है। लेट्स गो एंड सी, अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन लिख करके सबमिट करेंगे, से फॉर एग्जांपल email id and then some password, say for example, what will happen? ओहो, गलत पेज ही देख रहे हैं हम, टेस्ट डॉट एचटीएमएल था ना, रुकिए, लेट मी ओपन इट अगेन, कहाँ चला गया बता रही। हाँ, ब्लेम द इंटरनेट, ठीक है। अदरवाइज जो फॉर्म एक्शन टैग है, दैट इज द पर्टिकुलर टैग which is used to give the address or the URL where after submitting the submit button, ठीक है, the control should go, ठीक है। देखो ले भी जा रहा है इनफैक्ट ये, लेकिन वो इंटरनेट चूंकि चल नहीं रहा है तो ब्राउज ही नहीं हो रहा है, समझे? बट स्टिल इफ वी जस्ट लुक एट दिस यूआरएल वी विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें कन्वे करना है। क्या है, देखिए कहाँ गया ये, जामिया 100.ac.in पे गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप से फॉर एग्जांपल जीमेल के जो फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, उस पर जब आप सबमिट करते होंगे, तो क्या होता होगा, वो गूगल जीमेल के किसी यूआरएल के साथ, से फॉर एग्जांपल वो कहता होगा इनबॉक्स, ठीक है, और इनबॉक्स के साथ यूजर नेम पासवर्ड आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, राइट? अब वो यूजर नेम पासवर्ड जो आपने डाला है, ईमेल इज इक्वल टू शाह इमरान आलम दिख रहा है, फिर एंड वाला सिंबल जो है एम्परसेंट, उससे डिफरेंस हो रहा है सेकंड पैरामीटर, पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग आई हैव टाइप्ड, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज द फॉर्म पैरामीटर्स। व्हाट आर दीज वैल्यूज आर कॉल्ड? फॉर्म पैरामीटर्स, एंड these form parameters has name. Email is the name, it's the name that we have given to that box, just like we gave the name to a variable. Clear everyone? Guys, similarly, password is again a name that we have given to the box that takes password. And not only just name, when the form is being submitted, these values which is contained inside those name, inside those variables, they are also being passed to the
to the location for which I have given the action URL. ठीक है भाई, क्लियर है? सो फर्दर क्लासेस के लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा हम इसी विजुअल स्टूडियो को यूज़ करें, ठीक है, इट्स मच ईजियर टू यूज़। मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। कल क्लास है हमारी? अच्छा, ओके। So we will just try to look little bit of everything, and then we will come back to each topic one by one. ठीक है?